I'm going to discuss all the questions of exercise number 8.2, and that is the last exercise of this chapter. Okay, so we are going to finish this chapter today. So in 8.2 question, we have already discussed the midpoint theorem in the last video. So the use of midpoint theorem and its converse is in this chapter, in this exercise 8.2. The first question of 8.2, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. AC is the diagonal. Show that one is SR is parallel to AC and SR is half of AC, and PQ is equal to SR. Then third is PQRS is a parallelogram. So this is a given figure. This is ABCD is a quadrilateral. So A is here, A, B, C and D is a quadrilateral, and the midpoint of AB is P, midpoint of BC is Q, midpoint of CD is R and midpoint of AD is S. So, and all are joined to each other. ये join किया गया है, and it is written that AC is given diagonal of AC is the diagonal. Now you have to prove that SR is parallel to AC and SR is half of AC. Okay, now in triangle, question number 1, in triangle ADC, S and R are the midpoints of AD and DC respectively. मैं थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूं, respectively. Therefore, we can say that SR is parallel to AC and SR is half of AC. That is midpoint theorem. Okay, midpoint theorem. This is midpoint theorem and written in very short man. Okay. Now in triangle, similarly in triangle, similarly वहां पर लिखते हैं जहां पर हम सेम वही थ्योरम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. So similarly PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Again midpoint theorem लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहां पे सिमिलरली मैंने लिख दिया है. नाउ अब देखिए ये ट्राइंगल में ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट. दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम, वो हमने यहां यूज किया. नाउ बाय यूजिंग दीज टू स्टेटमेंट्स वी कैन कंक्लूड दैट SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ because SR is parallel to AC and AC is parallel to PQ. Therefore, SR is parallel to PQ. Now, SR is half of AC and PQ is also half of AC. Therefore, SR must be equal to PQ. Therefore, we can say that PQRS in quadrilateral PQRS opposite sides are equal and parallel. Therefore, PQRS is a parallelogram and this is proved. Okay, समझ में आ गया. मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस ये क्वेश्चन था. Now student, question number 2. ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that
PQRS is a rectangle. Okay, मतलब line segment joining the consecutive sides of rhombus must be a rectangle. Okay, so ये हो गया आपका rhombus है PQRS ABCD, sorry, ABCD is a rhombus. Okay, now P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD, and S is the midpoint of AD. It is given there. Okay, now इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल, PQRS must be a rectangle, ये हमें प्रूव करना है. तो आपको पता है पहले तो इसको आप पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और फिर उसमें एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे तो रेक्टेंगल हो जाएगा. बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल सेज अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल. तो हमें केवल एक ही एंगल 90 डिग्री का इसमें प्रूव करना पड़ेगा, या एंगल P, या एंगल Q, या एंगल R, या एंगल S. ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आप कोई भी साइड एक ज्वाइन कर, जैसे मैंने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, सपोज AC इज ज्वाइन, अब मैंने ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया. नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम इसको प्रूव करेंगे सबसे पहले कि ये पैरेललोग्राम. ठीक है, सो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. Okay, समझ में, पूरा नहीं लिखा मैंने. Therefore, we can say that line segment joining the midpoint of two sides of a triangle, इस triangle की बात कर रहे हैं, then it is parallel to the third side and half of it. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. समझ में आया? This is midpoint theorem. समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम ट्रायंगल लेंगे ABC. इन ट्रायंगल ABC, S and R are the midpoints of AD and CD respectively. Therefore, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. This is by using midpoint theorem. Okay. Now, by using these statements, we can say that PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. यहाँ देखिए, PQ is parallel to AC and SR is also parallel to AC. तो दोनों आपस में पैरेलल होंगे. इसी तरीके से PQ हाफ ऑफ AC है और SR भी हाफ ऑफ AC है, तो दोनों बराबर भी होंगे, दोनों हाफ ऑफ AC है. ठीक है, सो ये बराबर है. Therefore we can say PQRS is a parallelogram. इतना तो हो गया पैरेललोग्राम. अब एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो यहां से देखिए दूसरा डायगोनल हम ज्वाइन कर रहे हैं और आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस पॉइंट को M लिख ले रहे हैं और इसको N लिख ले रहे हैं, ये वाले पॉइंट को, तो अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें देखिए ध्यान से, SR is parallel to AC, therefore MO is also parallel to SN. यहां पे लिख सकते हैं SR is parallel to AC. अभी आपने लिखा SR is parallel to AC. Therefore, we can say that MO is also parallel to SN.
क्योंकि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी तो पैरेलल ही होंगे ना। देयरफॉर इसके अलावा आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल इसके भी होना चाहिए, ठीक है। सो SP इज पैरेलल टू BD, देयरफॉर SM इज आल्सो पैरेलल टू ON, देयरफॉर आप लिख सकते हैं MONS is a parallelogram and opposite angles of parallelogram are equal, therefore you can say that angle S is equal to angle O is equal to 90 degree. Now PQRS is a parallelogram and one angle is 90 degree. Opposite angles of parallelogram equal होते हैं, ये parallelogram आपने प्रूव किया है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। समझ में आया? Therefore PQRS, therefore you can say that PQRS is a rectangle. Parallelogram having one angle 90 degree is called rectangle. ठीक, समझ में आ गया? Now son, question number 3. ABCD is a rectangle. PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rhombus. Okay. So in this chapter, अभी इसके पहले मतलब line, segment या figure formed by joining the consecutive sides of a rectangle is a rhombus. यहाँ पर ये prove करना है, ठीक है। समझ में आया आपको? Now we will draw the figure. Okay. तो ये है रेक्टेंगल, ठीक है। ABCD is a rectangle. P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of DC and S is the midpoint of AD. Now PQRS को ज्वाइन करेंगे हम, ज्वाइन कर दिया। Now we have to prove that this is a rhombus, ठीक है। तो rhombus ज्वाइन बनाने के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स को हमें इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करना होगा, ठीक है। समझ में आया? तो अब क्या करें, सबसे पहले एक डायगोनल ज्वाइन करते हैं हम BD। आप AC भी ज्वाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ डायगोनल मैंने BD ज्वाइन किया, तो इन ट्राइंगल ABD, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ABD, ये ऊपर वाला ट्राइंगल मैंने लिया। सो इसमें लिखेंगे P and S are the midpoints of AB and AD respectively. Therefore, PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD. This is the midpoint theorem. तो यहां पे लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये देखिए नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे BCD, Q and R are the midpoints of BC and DC, therefore QR is parallel to BD and QR is half of BD. Midpoint theorem again. So in triangle BCD आप लिख सकते हैं QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. सिमिलरली लिख दिया है तो मिड पॉइंट थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम दीज टू, आप देखिए ये पैरेलल BD के है, QR is also parallel BD. Therefore we can say that PS is parallel to QR and ये भी half of BD है, ये भी half of BD है, ये दोनों बराबर होने चाहिए।
Therefore PS is equal to QR. Therefore we can say PSRQ या PQRS is a पैरेललोग्राम. आधा काम हो गया, पैरेललोग्राम प्रूव हो गया. अब हमको इसमें एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें तो ये रोम्बस हो जाएगा. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायगोनल हम और ज्वाइन कर रहे हैं. यहां पर देखिए, ये डायगोनल ज्वाइन किया मैंने. अब आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि अगर इस ट्राइंगल में PS जो है वो किसके बराबर है, ये किसके हाफ है, BD के. ठीक है, ज्वाइनिंग BD, वी कैन ज्वाइन तो पहले से BD है. PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड यहां पर देखिए ये SR AC के भी हाफ होगा एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC by using midpoint theorem, क्योंकि S and R are the midpoints of AD and DC. Therefore this line is half of AC, parallel and half of AC. So अब देखिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इनके दोनों के डायगोनल बराबर होंगे. Since AC is equal to BD, यहां पे लिख सकते हैं आप डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल. Therefore half of AC is equal to half of BD. अब half of AC क्या है, SR, और half of BD क्या है, PS. तो adjacent sides भी इक्वल हो गई. Therefore we can say that PQRS is a rhombus because PQRS is a parallelogram and adjacent sides are PQRS are equal to each other. Hence, this is a rhombus. समझ में आ गया? Students, see the question number 4. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. Okay. BD is a diagonal and E is the midpoint of AB. ठीक है? A line drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम है और जब भी कभी ट्रेपेजियम को एक्सप्लेन किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि कौन सी साइड किसके पैरेलल है. तो इन दिस क्वेश्चन AB is here, ABCD is a trapezium and it is given that this is parallel to this. Okay. Now अब ये कह रहा है कि इसका मिड पॉइंट है E और E से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है AB के. ठीक है, तो ये एक लाइन ड्रॉ की गई है AB के पैरेलल. तो अब आपको प्रूव करना है कि ये F पर इंटरसेक्ट करे तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. F को BC का मिड पॉइंट प्रूव करना है. यहां पर आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करना होगा. देखिए कैसे, इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं BD. ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हो गया, कोई बात नहीं है. ओके, नाउ अब देखिए ये थोड़ा डबल हो गई लाइन, आप थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा. ओके, तो ये मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं G. ओके, ज्वाइनिंग DB वी कैन गेट G हियर. नाउ इन ट्रायंगल अब देखिए ये एक चीज बोली गई है कि EF इज पैरेलल टू AB, ये गिवन है, एंड AB इज पैरेलल टू CD. Therefore EF is also parallel to CD. समझ में आ गया? अब देखिए बहुत आसान है, इसमें एक और थ्योरम अप्लाई कर सकते थे लेकिन वो थ्योरम आपको पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, वो 10th में आप पढ़ेंगे. लेकिन हम आपको इसको मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कर रहे हैं. इन ट्राइंगल DAB E is the
midpoint of AD and EF is parallel to AB. Therefore G is the midpoint of DB. ओके, ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब ये ट्राइंगल लेंगे अपन DBC। इन ट्राइंगल DBC G इज द मिड पॉइंट, अभी आपने प्रूव किया, मिड पॉइंट of DB and GF is parallel to CD. गायब। GF is parallel to CD, ठीक है, क्योंकि EF पैरेलल है CD के, तो उसका एक पार्ट GF भी पैरेलल होगा CD के। Therefore we can say F is the midpoint of BC, converse of MPT, converse of midpoint theorem. This is the proof of this question. ठीक है, समझ में आ गया आपको? Last question number 5. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively, opposite sides का. See the figure. Show that the line segment AF and EC trisects the diagonal BD. Okay, देखिए फिगर तो बना हुआ आपकी बुक में, लेकिन ये देखिए ध्यान से, ये है आपका, मैं भी देख लेता हूं बुक में फिगर। ठीक है, तो ये है पैरेललोग्राम ABCD। A यहां है, B यहां है, C यहां है, D यहां है। तो इसमें कहा जा रहा है कि E is the midpoint of AB and F is the midpoint of DC, और यहां पर AF को ज्वाइन किया गया है और EC को भी ज्वाइन किया गया है और DB को भी ज्वाइन किया गया है डायगोनल। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपका P लिखा है, ये पॉइंट लिखा है Q, नहीं लिखा है तो मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ये पैरेलल होना चाहिए इसके, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, DQ का। और फिर ये देखिए यहां पर ये मिड पॉइंट गिवन है तो ये पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा इसके। इसका मतलब अल्टीमेटली हमें AF को EC के पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां देखिए आपको पता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, गिवन है ना, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, देयरफॉर आप कह सकते हैं AB is parallel to CD and AB is equal to CD. Opposite sides of parallelogram are parallel and equal. ठीक है, अब देखिए, therefore half of AB is parallel to half of CD. क्यों लिया हाफ, क्योंकि ये AB का हाफ है, ये भी है लेकिन ये AB का हाफ है और ये CD का हाफ है, तो इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे ना। तो इसलिए हाफ ऑफ AB is equal to half of CD and half of AB is equal to half of CD. ये यूक्लिड के एक्सिम्स कहते हैं कि अगर दो चीजें बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर होते हैं। तो अगर दो चीजें पैरेलल हैं तो उनके हाफ भी तो पैरेलल ही होंगे ना। ठीक है, तो इसलिए AB का हम हाफ ले रहे हैं AE
is parallel to CD का हाफ है FC एंड यहां पर भी लेंगे हम AE is equal to FC। अब देखिए ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इन क्वाड्रिलेटरल AECF opposite sides are parallel and equal, therefore AECF is a parallelogram। therefore हम कह सकते हैं AF is parallel to EC, AF is parallel to EC या CE। ठीक है, अब देखिए जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे। तो इन दिस वे वी कैन से दैट कि FP लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं कि ये जो FP होगा ये पैरेलल हो जाएगा QC के, और ये जो AP होगा वो पैरेलल हो जाएगा EQ के। ठीक है, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है तो उनके कुछ पार्ट्स भी तो पैरेलल ही होंगे ना आपस में, इसलिए। तो अब हम ये ट्राइंगल लेंगे, ये देखिए ये ट्राइंगल मैंने लिया ट्राइंगल DQC। सो इन ट्राइंगल DQC F is the midpoint and FP is parallel to QC, therefore P is the midpoint of DQ। इसका मतलब क्या हुआ, DP is equal to PQ। समझ में आया? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है किसके, इसके, तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली इन ट्राइंगल, ये देखिए ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं BPA है ना, ये E is the midpoint गिवन है, midpoint of AB and EQ is parallel to AB। Since AF is parallel to EC, therefore EQ is also parallel to AP। ओके, क्योंकि दो लाइंस जब पैरेलल है तो उनके कुछ पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। Therefore we can say that Q is the midpoint of PP। Therefore we can say PQ is equal to QB। ये दोनों बराबर हो गए, मिड पॉइंट है ये दो। जब ये इसका DQ का मिड पॉइंट P है तो DP is equal to PQ है, और अगर PB का मिड पॉइंट Q है तो PQ is equal to QB है। Hence we can say that ये जो लाइंस AF और EC है वो DB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ट्राइसेक्ट कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये सब। Now question number 6, show that the line segment joining the midpoint of opposite sides of the quadrilateral bisect each other। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, this is a quadrilateral ABCD, A, B, C and D, and the line segment joining the opposite sides of, suppose इसका मिड पॉइंट है P, BC का Q है, ये R है, ये S है। तो जो ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहे हैं हम, ये दोनों लाइन सेगमेंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो PO is equal to OR and SO is equal to OQ। ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा, करना ये होगा, सबसे पहले आप मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज करेंगे, पहले आप इसको ज्वाइन कर लेंगे।
PQRS को ज्वाइन करिए और इसको प्रूव कर दीजिए ये पैरेललोग्राम। PQRS इज अ पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये AC ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ADC S and R are the midpoints of AD and DC respectively. Therefore, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. Midpoint theorem, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल ABC ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC P and Q are the midpoints of AB and BC respectively. Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Now, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए क्या करना होगा, इन दोनों को आप अगर स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे तो SR is parallel to AC, PQ is also parallel to AC, therefore SR is parallel to PQ and SR is half of AC, PQ is also half of AC, therefore SR must be equal to PQ and SR equal to PQ। अब देखिए किसी कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। Therefore, PQRS is a parallelogram and diagonals of parallelogram bisect each other. Therefore, SO is equal to OQ and PO is equal to OR and hence prove कि opposite sides किसी quadrilateral के opposite sides को join करने, midpoint को opposite sides के midpoint को join करने वाले line segment एक दूसरे को bisect करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? Now student, question number 7 and the last question of this exercise and this chapter also. ABCC is a triangle right angled at C. A line through the midpoint of M of hypotenuse AB and parallel to the BC intersect AC at point D. Show that D is the midpoint of AC, MD is parallel to AC and CM is equal to MA is equal to half of AC AB. Okay, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल्ड एट सी। ये है सी, सपोज ये ए है, ये बी है, तो इसका जो मिड पॉइंट है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। Since M is the midpoint of AB, therefore AM is equal to MB is equal to half of AB। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि M से BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई, ये D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो वी हैव टू प्रूव दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC
ठीक है, अब देखिए ये M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और ये मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है एंड D इसको यहां पर D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड फिर CM को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें प्रूव करना AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ठीक है, अब देखिए क्या करना पड़ेगा. आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB and MD is parallel to BC. Therefore, D is the midpoint of AC. Converse of midpoint theorem. इसका मतलब ये हुआ, अब प्रूव हो गया AD is equal to CD. नंबर 1. ओके, नाउ अब आपको पता है कि MD is parallel to BC है. Therefore, आप देख रहे हैं ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा. Therefore, एंगल ADM is equal to 90 degree. Therefore, angle CDM is also 90 degree. Parallel lines है ना, तो corresponding एंगल बराबर होंगे. ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है. तो अगर ये 90 है तो ये 90 है, तो लीनियर पेयर से ये दोनों 90 है. ठीक है, अब देखिए ये दो ट्राइंगल्स नहीं है. तो इन triangle ADM and triangle CDM, AD is equal to CD from 1. देख रहे हैं आप ऊपर, ये AD is equal to CD क्योंकि हमने प्रूव किया है D is the midpoint. अब दूसरा एंगल D is equal to angle D is equal to 90 degree and last DM is equal to DM. ये है कॉमन. Therefore, triangle ADM is become congruent to triangle CDM. अब therefore क्या मिलेगा हमको? AM is equal to CM. AM is equal to CM. और AM किसके बराबर है? हाफ ऑफ AB. Therefore, we can see that CM is equal to AM is equal to half of AB. Hence, proof. ठीक है, समझ में आ गया? आसान था क्वेश्चन. अब ये चैप्टर, this chapter is now finished. Okay, so next जो वीडियो होगा उसमें as per the school instruction I will give you the content. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.